Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और धन्यवाद और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जैसा कि रंगा बता चुके हैं, सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर है 23314444, 23717106 और 23717117। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज होंगे म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। लेकिन इससे पहले हम आज गौर करते हैं पहले कि आज हेडलाइंस क्या है, बताएंगे रंगा। Thank you, Subodh. The top stories. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 1,000 crore rupees at Raebareli in Uttar Pradesh. Says Raebareli coach factory will soon become a global hub. Foreign investors pull out nearly 90,000 crore rupees from the Indian capital market so far this calendar year. And nearly 200 nations strike a deal to implement the landmark 2015 Paris Climate Treaty in Poland. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चालू वित्त वर्ष में अब तक विदेशी निवेशकों ने देश के पूंजी बाजार से लगभग 90,000 करोड़ रुपए निकाले और पोलैंड में लगभग 200 देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। Well, let's start off with the big story that we are tracking for you this evening. Prime Minister Narendra Modi today launched several development projects worth over 1,000 crore rupees at Raebareli in Uttar Pradesh. Mr. Modi, who is on a day-long visit to the state, also flagged off the 900th coach and a rake of Humsafar train manufactured at the modern coach factory in Raebareli. Addressing a public meeting at Lalganj, the Prime Minister said that within 2 to 3 years, the production of the rail coach factory will touch 3,000 annually. He said his government intends to expand the capacity to 5,000 coaches per year. The Prime Minister said the factory will produce coach of high-speed trains, metro trains and aluminium coaches. He said that the expansion of coach factory would generate employment opportunities for people. Earlier, Mr. Modi inspected the modern coach factory. He also dedicated to the nation 133-kilometer long Raebareli-Fatehpur-Banda section of the national highway. The project has been completed at a cost of about 558 crore rupees. It is an important link between the mining areas of Bundelkhand, Pilgrimage Center Chitrakoot, Lucknow and the Purvanchal districts of Uttar Pradesh. The newly widened highway is set to reduce travel time from Banda to Raebareli to 2.5 hours from 7 to 8 hours. उत्तर प्रदेश को काफी अच्छा ये पैकेज मिल रहा है, काफी नई परियोजनाएं आ रही हैं जिससे लगता है कि वो औद्योगिकीकरण की दिशा में एक तेजी से आगे बढ़ पाएगा
Exactly, and also a big boost for employment. And meanwhile, let's welcome our expert this evening, Dhirendra. Thank you so much for joining us on the show. Thank you. And let's move on and take a look at some of the other news stories that we have for you. The Revenue Department has imposed anti-dumping duty for 5 years on Chinese chemical used in making detergents to guard domestic players from cheap imports from the neighboring country. The duty in the range of $163.9 to $207.7 per ton on zeolite 4A, that is detergent grade chemical, will remain in force for 5 years. The Central Board of the Indirect Taxes and Customs said in a notification. एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। Sir, good evening to Market Mantra team. जी नमस्कार। My name is R.S. Daya. I have a question for Mr. Dhirendra Kumar. Yeah, please go ahead. Go ahead. I want him to evaluate these three schemes of Tata Mutual Fund. First is Tata Retirement Saving Fund, Yeah. Tata Short Term Bond Fund, and Tata Ethical Fund. Yes. These three funds, Tata Retirement Fund actually comes in two formats, whether you are in the accumulation phase or you are in the withdrawal phase. And short-term bond fund is a very, I would call it a above average bond fund, short-term bond fund. And the ethical fund is actually a Sharia compliant bond fund, and it complies with the Sharia rules in terms of what should not be the businesses which are dominantly dependent on interest income should not be investing in. And that has turned out to be a bonanza for the fund, because it has abstained from investing in banking stocks. It has abstained from investing in indebted companies. So those companies also turn out to be good investments. So I would say that my opinion doesn't matter, because these are all the three funds are actually, except for the short-term bond fund. The other two funds are fairly, they should be avoided, because you should be making investment decisions irrespective of, any of these ulterior features or characters of a fund. So retirement fund, any fund is a retirement fund. If you are actually planning to invest in you should choose the best option for retirement. Likewise, the Sharia compliant, the ethical fund should not be a determinant. You should be actually going just by the merits of it. It just happens to be a good fund so far. Okay. Let's go across to Vijay. He's joining us from Mumbai. Good evening, Vijay, and welcome to Market Mantra. सर गुड इवनिंग सर। Yeah, go ahead. सर मेरा क्वेश्चन, आजकल मार्केट में स्मॉल बैंक्स बहुत चल रही है। दे आर ऑफरिंग अराउंड 9 to 9.5% इंटरेस्ट। Which small bank are you पैसा referring रखना to? सेफ है क्या सर? कौन सी छोटी बैंक की आप बात कर रहे हैं? सर काफी है, जैसे एयू स्मॉल बैंक है, उज्जीवन फाइनेंशियल्स है, अच्छा। जनलक्ष्मी बैंक है। तो उसमें पैसा रखना सेफ है सर? आर दे गवर्न बाय आरबीआई पॉलिसी ऑफ 1 lakh? Probably these are regional rural banks. No. These are mainstream banks. They are small savings bank, and they're not small savings bank. RBI has actually given permission to three kind of funds, three kind of banks, and they are part of it. ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर की रेगुलेटेड बैंक्स हैं, और जैसा आपने देखा होगा कि बैंक के लिबरलाइजेशन का ये नतीजा है कि बंधन बैंक जब आया तो आपको 7% देने लग गया। कोटक बैंक अपने रिटेल सेविंग्स के लिए आपको 6% देने लग गया, और कहने भी लग गया कि 6% नहीं है, ये 1.5 गुना ज्यादा है, 50% ज्यादा है, और ये 9% देना तो ये बहुत ज्यादा है, 4 के बजाय 9 देना। तो ये बिल्कुल रेगुलेटेड है, ये उतना ही सुरक्षित है जितना कोई और बैंक है, लेकिन आपको सुरक्षा दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि बैंक के डूबने की संभावना कितनी है। और मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई का रेगुलेशन इतना कमजोर है, सारी बैंक सुरक्षित हैं। हिसार से चंद्रभान हमारे साथ है। चंद्रभान, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं 1000 रुपया, मतलब 5 फंड है मेरे पास जी।
1000 रुपए पर मंथ SIP करता हूँ 10 से 15 साल के लिए, मेरा होराइजन है सर। एक मल्टी कैप है आदित्य बिरला सन लाइफ का, दूसरा है वैल्यू एडिड ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, एक लार्ज कैप है एक्सिस का, एक मिड कैप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, स्मॉल कैप SBI का। सर ये ठीक है यहाँ, इसमें कोई पोर्टफोलियो में चेंज वगैरह? 5 है इनके पास। जी हाँ चंद्रभान जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त है और जितनी समझदारी से आपने पोर्टफोलियो बनाया है उससे मुझे लगता है कि एक तो आपको 1000 रुपए के बजाय थोड़ा ज्यादा बचा पाए तो वो मतलब 2 ही चीज आपको करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए ये बढ़ाते रहिए। 15 साल में कोई फंड मैनेजर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है अगर आप हर महीने पैसा लगाते हैं। और मेरी सलाह होगी कि थोड़ा और रिस्क लीजिए, ये लार्ज कैप को छोड़िए, ये जो आपकी स्मॉल कैप मिड कैप और मल्टी कैप है यहीं तक रहिए, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स को इंडेक्स बीट करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आजकल और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो लार्ज कैप को छोड़िए और ये जो मल्टी कैप मिड कैप और स्मॉल कैप इनसे ही अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ओके, जॉइनिंग अस नेक्स्ट इज सलमान फ्रॉम मेरठ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग सर, मैं सलमान मेरठ से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि शेयर मार्केट मंत्र है, शेयर मार्केट, जी हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे डिटेल से बताइए कि जैसे मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप शायद पहली बार इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में? जी सर, जी सर, थोड़ा सा डिटेल में समझिए। जी, शुरुआत करना चाहते हैं सलमान साहब। मैं आपको बताऊं कि आप डिटेल में तो बताना ये एक बहुत बड़ा PhD थीसिस का भी सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आप कमाते हैं, आप बचाते हैं और बचाए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का आपके पास 2 ही जरिया है, या तो आप किसी को उधार देते हैं या किसी कारोबार में आप कोई भागीदारी देते हैं, चाहे आप कोई दुकान खोल रहे हो किसी दोस्त के साथ या फिर कोई कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को देंगे और वो आपके हिसाब आपके कहे अनुसार किसी कंपनी के शेयर को खरीदेगा। ये 2-3 तरीका है कंपनियों में भागीदारी का। कारोबार खुद कीजिए, कंपनी का शेयर खरीदिए या किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उसका नतीजा ये होता है कि इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अगर आप किसी दोस्त के साथ लगाते हैं तो वो कारोबार डूब गया तो पूरा पैसा डूब गया। अगर आप 1 या 2 या 5 कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपको समझदारी से उस कंपनी में निवेश करना पड़ेगा। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। कुछ कंपनियां डूबेंगी, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी और कुछ कंपनियां एवरेज करेंगी और कुल मिलाकर के आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा और पूरा पैसा कभी नहीं डूबेगा, रिस्क कम हो जाता है। इस नजरिए से आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरुआती निवेशक आपके जैसा उसको थोड़े और सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाता हो, एक ऐसा पैसा जिसमें 1/3 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। शुरुआत करें लंबे समय का निवेश एक बैलेंस फंड से। इसमें 1/3 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगता है। बाजार जब गिरता है तो काफी औंधे मुंह गिरता है, तो उससे बचने के लिए ये जो बैलेंस फंड है ये पूरी तरह नहीं गिरते और तो शुरुआती भरोसा आपका बन पाता है। बैलेंस फंड में SIP के जरिए आप अपनी शुरुआत करें और 2-3 साल के बाद आप पूरे इक्विटी फंड में किसी मल्टी कैप फंड में या और जोखिम लेना चाहते हैं जहां उतार चढ़ाव बहुत होगा, बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होगी, उसमें बदलें। 2-3 अच्छे बैलेंस फंड के नाम बता सकते हैं धीरेन्द्र जी? जी हाँ, बहुत सारे अच्छे बैलेंस फंड हैं। टाटा का बैलेंस फंड है या ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है या HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज, या सबसे अगर मुझे सबसे ऊपर अगर एक रखना हो तो जो कि एक नया फंड है उसके 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, मिराई एसेट का हाइब्रिड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। नोएडा से विजय हमारे साथ हैं। विजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening. Good evening. I came to India in March this year and had some money, about $100,000. Okay. And that money I invested on the advice of a friend into a mutual fund, on the advice of a mutual fund managing company. Okay. I think they put in about 60% into Reliance Hybrid and about 40% into L&T Hybrid.
Now, initially, about 3 months, I was happy. It was growing. Mm-hmm. And then suddenly I found that there's a reverse trend now. I'm a bit worried. That's the only money I had. Okay. Yes, what would you say? $100,000 and invested probably in one go. It which is about 70 lakh. Yeah. I think your friend hasn't done the right thing in a sense of if this is the only because the key word is not that it's a good fund or it's $100,000 or whatever. What is the criticality of that money? If this 100,000 is the big money or the only money or the significant part of your savings, then you have to really invest it in a manner that you are able to average it over a period of time. And investing it at one go, even in a balanced fund. In fact, the 2 balanced funds that you have listed are good funds. But a good fund will not save you from a decline in value of a substantial kind if it is invested at one go at the wrong time. So the only insurance that you have it is that you spread your investments over a period of time. And over a period of time can range between, anything between 6 months to 3 years. If it is extremely critical, it should be spread over 3 years so that you eliminate the possibility of catching a market high at any time, at all, very aggressively. And if the money is not very critical, which means if it is your annual bonus, maybe spread it over 6 months. This is where the mistake is, and don't worry. Take a stock of it. The decline won't be very substantial. Your friend has tried to do the best he could, but maybe he didn't have the understanding. And when the market is in good times, people lose their perspective. In their optimism, it may not be a very deliberate mistake. It may be just a matter of chance that somebody may not be aware of how to deal with it, or there's a possibility, or in the optimism, if we are coming from a market where the market is generally going up, we don't get a sense that things can turn horrible very quickly. And so take a stock, think about it, and for future, it's your money, take charge. Okay. Let's go across to Kolkata, where we have Subroto joining us on the phone line. Good evening and welcome to Market Mantra, Subroto. अच्छा, मेरा पिताजी 2000 में 8 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद किया था. तो 5 यूटीआई का, एक आईपीएल प्रूडेंशियल, एक फ्रैंकलिन टेम्पटन और एक कोटक का. हम शेयर में इन्वेस्ट करता है और जनरल करता है, नीचे से पकड़ लेता. एक 2000 में किया था, किसी का 10 फेस वैल्यू था. निफ्टी इंडेक्स एमएनसी यूटीआई का, निफ्टी इंडेक्स एमएनसी क्या म्यूचुअल फंड के क्या 11,700 का निफ्टी गया था. क्या समय ऊपर में सेल कर नीचे खरीद कर, क्या सिस्टम क्या है, क्या जो ओन करता है उसको क्या करना चाहता है? लेकिन नहीं कि हमारा. सुब्रतो जी, आपका सवाल क्या है? 8 फंड में आपके पिताजी ने इन्वेस्ट किया था, आप अपना सवाल पूछें. हाँ, आप क्या जानना चाहते हैं? देखिए 11,700 जब टोटल में सेल करने से हम बहुत नीचे पकड़ नहीं सकता. म्यूचुअल फंड के शेयर कमापी होता है, ऊपर में सेल करो, नीचे पकड़ो. ये पकड़ने छोड़ने की छोड़िए, मतलब मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया. आई थिंक आपने ट्रेडिंग जैसा तो नहीं है. जी सुब्रतो जी, आप इसके बारे में, आपके पिताजी ने 8 फंड में इन्वेस्ट किया था, 2000 में इन्वेस्ट किया था. इन फंड में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है और इसलिए अगर आप ये रोज रोज खरीद बेच करते हैं तो समझिए कि स्टॉक से पैसा बनाने का या मार्केट से पैसा बनाने का एक आपके पास बहुत ही आसान जरिया है, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग जरिया है. अच्छी कंपनियों का शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ सालों के लिए कीजिए. जब सस्ता हो तब करिए. अगर सस्ता हो ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब सस्ता होता है तब हिम्मत नहीं होती खरीदने की. जब महंगा होता है और रोज रोज बाजार बढ़ रहा होता है तब बड़ी हम आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समय लगाने से पैसा बनता नहीं है. तो इस चीज से बचने के लिए फिर आप किसी म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी करिए, ताकि अच्छे और खराब बाजार में भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे. अगर ये काम आप खुद सीधे कंपनियों के शेयर में कर पाते हैं, अच्छी बात है. नहीं कर पाते हैं, म्यूचुअल फंड में कीजिए. और आपके पिताजी ने 2000 में जो पैसा लगाया था इन 8 फंड में, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पे महंगाई से, फिक्स्ड इनकम से और
ये उटपटांग तरीके से खरीदे हुए सेक्टर फंड्स, जिनको कि मैं आमतौर पे लोगों को कहता हूं कि उनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसमें भी खासा पैसा बना होगा। फार्मा फंड पिछले 2 साल पहले तक इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है और शायद 10 गुना बढ़ा होगा। एमएनसी फंड, उसमें भी भारत में 2 एमएनसी फंड है, एक यूटीआई का था और वहां पे भी बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मेरे ख्याल में वहां पे भी 8-9 गुना पैसा आपका बढ़ा होगा 2000 से 2018 के में। तो आप उनके परफॉर्मेंस को देख करके आप उससे सबक लें और ये डे ट्रेडिंग बंद करें। मुझे बहुत सालों तक लोगों को देख करके ये समझ में आया है कि डे ट्रेडिंग से बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं और बहुत ढेर सारे लोग इसमें से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और जो बहुत सारे लोग जो कोशिश करते हैं उनका जो पैसा डूबता है वही कुछ लोग पैसा बना पाते हैं। बस्ती से संतोष हमारे साथ हैं। संतोष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मुझे 2 फंड के बारे में जानना है। एक रिलायंस का एक नया आया है, रिलायंस ओवरनाइट फंड, और एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड। ये दोनों फंड्स कैसे रहेंगे सर एसआईपी करने के लिए लॉन्ग टर्म के? आप क्यों करना चाहते हैं ओवरनाइट फंड में? ओवरनाइट फंड ऐसा है जो कि अपना पैसा ओवरनाइट कॉल मनी में पैसा अपना लगाता है। आप शाम को पैसा लगा दें और अगले दिन आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वहां पे और साल में 3-4 मौका ऐसा आता है जहां पे ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न पाते हैं, तो 1.5% का रिटर्न दे पाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। दूसरा जो मल्टी एसेट फंड है, आमतौर पे मल्टी एसेट फंड आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेबी ने जो प्रावधान किया है 6 तरीके के हाइब्रिड फंड कंपनियां चला सकती हैं, उसमें आपके लिए 3 तरीके के हाइब्रिड फंड आपके लिए कारगर हैं। एक ऐसा फंड जो कि कंजर्वेटिव है, जिसमें 25% तक फिक्स्ड इनकम में लगा होता है, बाकी पैसा अब 25% तक इक्विटी में लगा होता है, 75% फिक्स्ड इनकम में लगा होता है। ये कंजर्वेटिव शुरुआती निवेशक के लिए एक अच्छा चीज है, जिसमें कि आप महंगाई से जूझने के लिए आप निवेश करते हैं और महंगाई से बेहतर रिटर्न आपको मिल पाएगा। कम से कम महंगाई को बराबर करने वाला रिटर्न आपको मिल पाएगा 3 से 5 साल में। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा निवेश है, क्योंकि जो इक्विटी कंपोनेंट है वो आपसे महंगाई से जूझने में मदद करता है। दूसरा फंड जो कि 50% इक्विटी हो, 50% फिक्स्ड इनकम हो, ऐसे फंड भारत में नहीं है, और इस कैटेगरी में जितने फंड दिखते हैं वो या तो रिटायरमेंट फंड है या चिल्ड्रन फंड है, जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। और कुछ फंड हैं जो कि बैलेंस्ड एडवांटेज से या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उनमें से आप कुछ देखिए, पर अगर मैं रिटायर करता हूं कल, तो मुझे एक ऐसा फंड चाहिए होगा जिसमें 50% इक्विटी, 50% डेट, और वो जल्दी जल्दी रीबैलेंस करता हो, जिसका मुझे फायदा मिल पाए। और दूसरा जो कि पहले के बैलेंस फंड हुआ करते थे, जिन्हें अब अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड कहा जाता है, 75% इक्विटी, 25% डेट, और इसके अलावा जितने भी फंड हैं इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो आप, और ये जो इक्विटी ये जो जिस फंड की आप बात कर रहे थे, जो कि मल्टी एसेट फंड है, इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, किसी और कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कमोडिटीज के भी। अभी तक तो जो मल्टी एसेट फंड है उसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड में निवेश करने का प्रावधान है। इन फंड से बचना चाहिए। यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा काम बहुत सालों के निवेश से नहीं हो पाया है। ये अगली खबर पे नजर डालते हैं। वर्ष 2018 अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और इस वर्ष अब तक विदेशी निवेशकों ने देश के पूंजी बाजार से लगभग 90,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे यह वर्ष भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश के लिहाज से सबसे बुरा साल साबित हो सकता है पिछले कुछ वर्षों की तुलना में। इससे पहले 2017 में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर और ऋण बाजार में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने ऋण बाजार से अब तक 52,700 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि शेयर बाजार से लगभग 25,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। इस तरह कुल 87,700 करोड़ रुपए की रकम निकाली गई है, जिससे यह वर्ष 2002 के बाद पूंजी बाजार में विदेशी निवेश के लिहाज से सबसे बुरा वर्ष साबित हो सकता है। 2012 से 2017 तक विदेशी निवेशकों ने लगातार भारतीय शेयर बाजार में निवेश का रुख बनाए रखा था। And in some more news,
Nations have struck a deal to implement the landmark 2015 Paris Climate Treaty after marathon talks in Poland. After 2 weeks of talks in the Polish city of Katowice, nearly 200 nations finally reached consensus on a more detailed framework for the 2015 Paris Agreement, which aims to limit a rise in average world temperatures to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Last-minute rows over carbon markets threatened to derail the meeting and delayed it by a day. Ministers managed to break a deadlock between Brazil and other countries over the accounting rules for the monitoring of carbon credits. नोएडा से सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं जी, और मैंने कभी उनको मैंने काफी साल पहले खरीदे शेयर्स, तो आप मैं उसको डीमैट, क्योंकि मैंने सुना है कि आप इसे डीमैट फॉर्म में ही डीलिंग हो सकते हैं जी। तो मेरा सवाल है कि हाउ डू चेंज फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू डीमैट फॉर्म चेंज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? दो तरीका है। एक तो आप अपने बैंक में जाएं और अपना डीमैट अकाउंट खोलें और उसके बाद डीमैटेरियलाइजेशन के लिए अपने कंपनी, जिस कंपनी का आपके पास शेयर है, उसके पास अपने शेयर्स भेजे रिक्वेस्ट के साथ कि आपका ये डीमैट अकाउंट ये है और आपका डीमैट अकाउंट नंबर ये है। और हमेशा एक डीमैट अकाउंट से एक बैंक अकाउंट जुड़ा होता है, ताकि कंपनी से मिलने वाला कोई डिविडेंड या जब कभी आप अपना शेयर बेचे तो आपके कंपनी के शेयर्स को बेचने का जो प्रोसीड्स है उस बैंक खाते में सीधा आ सके किसी ब्रोकर के जरिए। तो किसी ब्रोकर के जरिए या किसी बैंक में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इसको जल्दी कराएं, क्योंकि सेबी ने यह अनिवार्य कर दिया है कि शेयर खरीद रखने के लिए जरूरी है कि आप डीमैट अकाउंट आपके पास हो, और उसका जो डेडलाइन था वो एक्सटेंड किया गया है। तो ये तुरंत करें, और जब आप बेचेंगे उसके बाद भले ही आप अपने डीमैट अकाउंट में बैंक के जरिए खोले, अगर आप खरीद बेच नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रोकर के जरिए डीमैट अकाउंट नहीं होने का ये नतीजा है कि आप लंबे समय तक आप ये शेयर होल्ड कर पा रहे हैं, और ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप फिजिकल फॉर्म में एक बार स्टडी की थी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने, कि जानने के लिए कि उनके कौन से निवेशक हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। तो 50-70 साल के निवेश के स्टडी के बाद पता चला कि कुछ ऐसे 10% ऐसे निवेशक हैं जिन्हें खासा रिटर्न मिला है और बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला है। जब उनके बारे में पता करने चले तो पता चला कि वो निवेशक अब वो फिजिकल फॉर्म, it is not a physical form. What I am saying is that if you forget your investments, you generate great returns. निवेश अगर आप, तो पहला कैटेगरी वो था जो निवेशक अब जीवित नहीं थे, भूलने का नतीजा था। दूसरे निवेशक ऐसे थे जिन्होंने निवेश करने के बाद अपना निवेश भूल गए थे, जिसका नतीजा वो था। और फिजिकल फॉर्म वो ही है, जब आप डीमैट अकाउंट में रखते हैं और ब्रोकर के यहाँ अकाउंट होता है तो आपको लगता है कि हर 3 महीने पे कुछ आपको हरकत करना चाहिए, जिसका कि आमतौर पे आपको नुकसान होता है। Right. Let's take our next caller, probably our last caller this evening. We have Amit joining us from Jharkhand. Good evening, Amit, and put your question quick. सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है। या 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसका ग्रोथ अच्छा दिख नहीं रहा है मुझे। ओके। और भाई आपकी हमेशा रहती है कि उसमें करें, लेकिन उसका बैंक से उसमें निकलूँ या उसे बना रहा हूँ सर? यस, वेरी क्विकली। ICICI वैल्यू डिस्कवरी एक वैल्यू फंड है, और उस वैल्यू के चक्कर में पिछले दिनों उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर रही है। इस फंड का सबसे बड़ा होल्डिंग सन फार्मा था, जहां पे बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी को देखेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में भले ही खराब लगे, 5 साल का रिटर्न काफी इंप्रेसिव लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ असर होता है। आपका आधा पैसा या 1/3 पैसा ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में हो तो नुकसान, तो चिंता की बात नहीं है। अगर पूरा पैसा इसमें हो तो जरूर निकालें। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 1,000 crore rupees at Raebareli in Uttar Pradesh. Says Raebareli coach factory will soon become a global hub. Foreign investors pull out nearly 90,000 crore rupees from the Indian capital market so far this calendar year, and nearly 200 nations strike a deal to implement the landmark 2015 Paris Climate Treaty in Poland. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.
Market Mantra.